Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, so first of all, I welcome all of you in this lecture. तो चलो शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा बकरा. ओके, so wait a minute, let me present my screen to you. ओके, जैसे कि आपको पता है टुडे इज सैटरडे. सो आज हमारा स्पेशल एपिसोड रहेगा बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नंबर 1 एज वेल एज प्रैक्टिकल नंबर 2. आई होप आप सबने फर्स्ट टू प्रैक्टिकल सॉल्व कर लिए होंगे, राइट? Yes, sir. ओके, सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन ऑन योर स्क्रीन. आप सबको रूल्स तो पहले से ही पता है, फिर से बताने की जरूरत तो नहीं होगी, राइट? Yes, sir. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमारा कहाँ तक हो गया था, 12 या 13? आई थिंक ये भी हो गया था. आई थिंक 15 तक हमने किए थे, इज इट? Yes, sir. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स. ओके, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है age chromatic number of a bipartite graph g of x comma y comma e is. Okay, g of x comma y comma e means what? First, see, bipartite graph is a graph in which we are going to divide its vertices into two parts. So first part में हम जो vertices collect करेंगे उस set को हम नाम देंगे x, second को हमें नाम देना है y, and e represents age set. Okay, yes, Ritik, unmute yourself and explain this question number 16. सर इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा मैक्सिमम कार्डिनलिटी एक्स कोमा कार्डिनलिटी वाई, क्योंकि सर एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको एज को, और मैक्सिमम एज रहेगा तो उतना नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड होंगे कलर करने के लिए, इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट है. Okay, समझा सबको? हेलो सर, है ना ऑडियो? Yes, Ritik, you are audible. Yes, is that clear Yes, to sir. everyone? Yes, sir. See, in other words, हमें इसके vertices को two sets में break करना पड़ेगा. You call it as x, you call it as y. So in set x, we are having some vertices. Similarly, in set y, we are having some vertices. Okay. Now, as we all know that this is a bipartite graph, but it is not complete bipartite. Okay. So you can see this is a bipartite graph. Now, what is its age chromatic number? Yes, Ritik. First of all, tell me, is it bipartite? यस सर. Yes. So this graph is bipartite graph. Now tell me, what is its age chromatic number? सर टू.
So according to you, it should be the maximum of cardinality of x comma cardinality of y. Yes, sir. Here the cardinality of x is 3 and the cardinality of y is 4. What it Yes, sir. means? But sir, इसमें जो ऑप्शन आ रहा Sorry. सर 2 आ रहा पर जितना भी कार्डिनलिटी है उसे ऑप्शन में तो आ ही नहीं रहे ना वो तो दिक्कत है तो Now tell me. सर इट्स 3 कार्डिनलिटी ऑफ x इक्वल So दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? Have you got my point? नो क्वेश्चन सर समझ में आया मैंने क्या पूछा? नो Okay. So just try to think on it. What is the difference between these two? Okay, and I want the more accurate answer for this question in my next lecture. Just try हेलो to सर think on it. What happens if I consider these kinds of graphs? सर यू आर नॉट ऑडिबल Sorry? ओके ये जो नीचे वाला ग्राफ है इसका एज क्रोमेटिक नंबर क्या आएगा? Yes. What is the age chromatic number of this graph? हेलो सर Okay, wait a minute. Let me bring my earphone. Till then, you just try to think on this question. Why is it so? And which one is the more correct answer among these? हेलो सर ड्यू टू नेटवर्क इशू आई गॉट डिस्कनेक्टेड सर कैन यू रिपीट वंस अगेन Yes. Am I audible? Yes, sir. Okay.
Yes, Ritik, what you are going to say? Are you there, Ritik? ओके, तो इस 16 का आंसर क्या होगा? ओके, पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज द एज क्रोमेटिक नंबर ऑफ दिस सेकेंड ग्राफ? Yes, Ajit. What is the age Yes, sir. number of this second graph? 1 होगा सर. 1 होगा. Is it bipartite? Yes. Is it bipartite? Yes, sir. Yes. And what is cardinality of x? 3. And what is cardinality of y? 3. ऑप्शन रॉन्ग है लगता है इस क्वेश्चन का. ओके, अब ऊपर वाला ग्राफ ऑब्जर्व करो. What is the cardinality of x? 3. This is 3. What is the cardinality of y? 4. 4. Can I say this first graph is bipartite? Yes, sir. And what is its age chromatic number? 3. So this is 3. What happens if I remove this age? Now tell me, is it 2. is it still bipartite? Yes, sir. So its age chromatic number is 2. Yeah. Now observe the options and tell me which one is the more accurate one. सबको समझा मैंने क्या पूछा? I want answers from Yes, sir. everyone. What about Bijal, Yes, sir. Tanvi, Yes, sir. and Akanksha? ओके, चलो अब सबके सब अपना आंसर बता दो, इस ऑप्शन का क्या रहना चाहिए. पहले हम अजीत से स्टार्ट करते हैं. यस अजीत, व्हाट इज योर आंसर? सर इसका ऑप्शन मेरे को लगता है रॉन्ग है सर. जितने भी ऑप्शंस हैं मेरे पास. ओके, अजीत के हिसाब से एक और ऑप्शन होना चाहिए, नन ऑफ दिस, राइट? ओके, यस तन्वी, व्हाट इज योर आंसर? Yes, Tanvi, unmute yourself. Sir, same. What same? None of this. None of these. Okay. Yes, Bijal, what is your answer? सर वो कार्डिनलिटी ऑफ वाई भी हो सकता है या फिर डी मैक्सिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई. पर सर अभी आपने वो एग्जांपल दिया ना, उसमें तो 1 आ रहा है ना, हाँ. सेकंड वाला एग्जांपल. तो सर पता नहीं. सिर्फ पता नहीं मीन्स व्हाट? तो सर कंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ, मतलब क्या आंसर हो सकता है एग्जैक्टली. मैंने जो एक्सप्लेन किया वो समझा आपको? हाँ वो समझा. तो उससे आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो? इसमें मैक्सिमम सेकंड में 3 है और उसमें मैक्सिमम 4, और हम तो कलर कर रहे हैं 3 से और 2. तो सर नन ऑफ Okay. दिस. Yes, Akanksha. Yes, Akanksha, what is your answer? सर आंसर इसका नन ऑफ दिस ही आएगा, लेकिन अगर वो कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ पूछेंगे तो उसका आंसर मैक्सिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स एंड वाई आएगा.
Okay. Yes, Aditi, what is your answer? Aditi, are you there? Yes. What is हाँ your सर, answer नहीं for मेरा this? ये ईयरफोन कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। हाँ सर, जो आकांक्षा ने बोला वो ही लग रहा है, क्योंकि बाय अगर से ए होगा तो फिर पर बाय पार्ट है देने तो फिर मैक्सिमम ही आएगा शायद से। ओके सी, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करूं और बोलूं वी वांट एज क्रोमैटिक नंबर, और अगर इसे मैंने ऐसे लिखा तो लेस देन और इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स कॉमा मॉड वाई, तब हो देन सकता है, तब हो सकता है सर, डी वाला आंसर सही हो सकता है। तब हो सकता है। ओके सी, रिमेंबर हियर chi prime of this graph G. See, this means maximum of cardinality of x comma cardinality of y, means either cardinality of x comma cardinality of y. ओके और अगर मैं इसी में लेस देन और इक्वल्स टू लगा दूं तब ये राइट हो सकता है। तो एक तो आप ये चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन में चेंज कर लेना कंप्लीट बाइपार्टाइट। Is the question clear now? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। सो रिमेम्बर, आपके पास क्वेश्चन है तो खाली क्वेश्चन का आंसर मत ढूंढो, उस पर एनालिसिस भी करो थोड़ा कि वो क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं है और उसे हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। 18 वाला भी रॉन्ग है सर। कौन सा? 18 वाला क्वेश्चन। ओके हाँ, वो देखते हैं। पहले हम इस 17 के बारे में बात करते हैं। Okay, the age chromatic number of complete graph Kn is. Yes, Bijal, unmute yourself and explain. Yes, sir. Option C is correct. See, we are not interested in answer. I told you that explain. सर n रहेगा जब भी ऑड नंबर ऑफ एजेस रहेंगे एंड n-1 रहेगा जब भी इवन नंबर ऑफ एजेस रहेंगे। ओके तो इसके बारे में हमें रिजल्ट पता है और ये हमने प्रूव भी किया है, राइट? द एज Yes. chromatic number of complete graph on n vertices is n when it is odd cycle, or we can say when this number of when this n is odd, and it is n-1 when n is even. Is it? Yes, sir. ओके सो क्वेश्चन नंबर 17 में किसी को कोई डाउट है? अब बिजल, ये एज को अगर मैंने वर्टेक्स से रिप्लेस किया तो आंसर क्या आएगा इसका? n. यस बिजल? n आएगा सर। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है, 6th क्वेश्चन जैसा है।
ओके ओके, तो इतना याद रखो, क्वेश्चन कहीं से भी घूम सकता है, आपको उस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा थिंक करके आंसर देना है। ओके, और सेमेस्टर 5 में आपको पता चल चुका होगा कि क्वेश्चन कैसे घूमता है, राइट? यस सर, गोल गोल। ओके, अब 18 वाले के बारे में बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18, इफ द एज क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए ग्राफ G equals maximum degree of G, then G is। क्वेश्चन समझा क्या पूछा है? हाँ यस सर, आकांक्षा, समझा। यस आकांक्षा, आपका आवाज नहीं आया। यस सर, समझा। ओके, क्वेश्चन इज chi prime of G is equals to delta G. Then what you are going to say about this graph G? Okay, yes, Tanvi, unmute yourself and explain. So, sir, for bipartite graph, this condition is satisfied, we know, and every tree is a bipartite graph. So, the answer will be A and B. And for cycle, it depends on odd cycle or even cycle. And for that, it does not satisfy the condition. Okay. Okay, so इसके ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे बिकॉज वी नो दैट age chromatic number of a bipartite graph is nothing but delta G, and we also know that every tree is a bipartite graph. ओके, सो इस क्वेश्चन नंबर 8 के ये दोनों करेक्ट होंगे। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, और ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ट्राई करो जितने आपसे हो सके। ओके, इसमें के तो ये फर्स्ट 5 तो हमने कर ही लिया है। ओके, अब आपको प्रैक्टिकल देने का टाइम आ चुका है। Okay, now write down your first practical. Okay, attempt means write down any 10 MCQs out of 18 MCQs in your first practical. Then take this question number 5. Then this question number 4. Question number 9. Okay, 3 questions हो गए। Then कौन कौन से एक बार रिपीट करना सर? yes अजित, कुछ कौन बोला? से 3? 9, 9, 5 और 1? 4। 4, 5 and 9। ओके, ये ओके। 3 हो गए, 2 और बाकी हैं। Okay, take this question number 15.
and take this 8. Question number 8. Try करो, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता. Okay, so let me repeat. In first practical, write down any 10 MCQs out of 18. In descriptive question number 4, question number 5, question number 8, question number 9, and question number 15. Is the practical number 1 clear? Yes, sir. Okay. Now let us see our second practical. Okay. Yes, Shravan Gupta, unmute yourself and explain this first one. The chromatic polynomial of a complete graph K3 is. हेलो. Yes, Shravan. यस सर, इसका बी हो जाएगा सर. Explain. तो सर हमने एग्जांपल देखा था ना. मैंने तो नहीं देखा था. क्लासरूम में. Yes. सी देखा था, लेकिन आप इसे डिस्कार्ड कैसे करोगे? डिस्कार्ड करना मीन्स नन ऑफ दिस तो कभी नहीं होता, रेयर केस में हो सर, सकता है. सर अगर Okay? हम लोग अब ट्रायंगल आप ले लें. यस, कंप्लीट ग्राफ K3 मीन्स ट्रायंगल ही आएगा. हाँ, तो उसमें हम लोग पॉलिनोमियल रेडी कर सकते हैं ना, क्रोमेटिक पॉलिनोमियल. सो k-1 k-2 ही होएगा. सो इसके लिए हमारे पास K चॉइसेस, इसके पास इसके हमारे लिए पास k-1 K-1 चॉइसेस, और थर्ड वर्टाइस और k-. इसके पास हमारे पास K-2 चॉइसेस. ओके, सो इसका क्रोमेटिक पॉलिनोमियल क्या आना है? K इंटू K-1 इंटू K-2. बट रिमेंबर, आपको इसे डिस्कार्ड भी करते आना चाहिए. आप डिस्कार्ड कैसे करोगे? मान लो कि आपने ऑप्शन नंबर 3 कंसीडर किया, विच इज K3. सो K3 K टू द पावर 3 किसका क्रोमेटिक पॉलिनोमियल आता है? 3 यस. सर अगर ग्राफ 3 वर्टाइसेस रहेंगे और तीनों वर्टाइसेस कनेक्टेड नहीं रहेंगे ना, नहीं तो होता. होगा ऐसा. मीन्स तीनों वर्टाइसेस आइसोलेटेड रहने चाहिए, और यू कैन से नल ग्राफ ऑन 3 वर्टाइसेस. यस सर. ओके, सो इस तरीके से ग्राफ होगा तो उसका क्रोमेटिक पॉलिनोमियल होगा K टू द पावर 3. और ये किसका क्रोमेटिक पॉलिनोमियल बनता है? ये भी हमने देखा था. यस, मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, अगर याद हो तो. यस, व्हाट यू सेड K12 दैट? का. 3. Exactly. Okay, so this is the chromatic polynomial of a tree on how many vertices? 3 vertices, I think. 3 vertices. Okay, you can see what is the chromat. First of all, tell me, is it a tree? Yes, sir. यस सर. Yes, so this is a tree. So मान लो कि हमारे पास एक कलर बॉक्स है, उसमें K कलर्स है. इसे मान लो कि मैंने K कलर से कलर किया. अब ये दोनों वर्टाइसेस इस वर्टेक्स को एडजेसेंट है, तो हम इसे K कलर से कलर नहीं कर सकते. सो हम इसे कलर करेंगे K-1 कलर से, और इसे भी. एज दिस टू वर्टाइसेस आर नॉन एडजेसेंट, so we can use the same color for this vertex also. Okay, अगर आपको याद हो तो मैंने ये आपको होमवर्क के लिए दिया था. शो दैट फॉर एनी ट्री ऑन P vertices its chromatic polynomial is K into K-1 to the power P-1. Is it?
यस Yes, सर, sir. मैंने किया भी था। यस। तो देखो एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। ओके, अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो हो सकता है कि ये 2 ऑप्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए उनका कहीं पर क्वेश्चन बना के दे दे ये लोग। तो जितना हो सके उतना उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा एनालिसिस किया करो, खाली आंसर के बारे में मत सोचा करो कि इसका आंसर क्या आएगा। वो आप कब सोचोगे जब आपको चारों के चारों ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं पता होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Okay. Now the second question. The polynomial t to the power 4 minus 4t cube plus 6t square minus 3t is the chromatic polynomial of a graph G. Then the order of G is. Yes, Aditi Korea, unmute unmute yourself and explain. आई थिंक फिर से आपका एयरफोन का प्रॉब्लम आया है, आवाज नहीं आ रहा है। एयरफोन रिमूव कर दो और आप ऐसे ही बोलो। हेलो सर। यस अदिति। हाँ सर, t⁴ है तो ऑर्डर 4 होगा इसका। व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्डर ऑफ जी? और ऑर्डर ऑफ जी सी, आपको इसका मतलब ही नहीं पता ऑर्डर ऑफ जी क्या है और आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। क्या होता है ऑर्डर ऑफ जी? सर मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स ऑर्डर ऑफ ग्राफ होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सो यहाँ पे तो स्मॉलेस्ट नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। सी, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ खाली आंसर पे मत फोकस करो, पहले क्वेश्चन समझो क्या पूछा है, तब भी आप आंसर पे जाओगे। ओके, यस ऋतिक, एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन नंबर 2। सर इसका आंसर आएगा 4 क्योंकि वी नो दैट हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। और यार यहाँ पे पूछा है ऑर्डर, ऑर्डर और वर्टाइसेस सेम होता है ग्राफ का, तो इसका 4 रहेगा। Okay, so order of G means the number of vertices in the graph G. Okay, और हमने ऑलरेडी बोला था कि जो भी इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन द ग्राफ G. सो हाईएस्ट डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? हाँ सर। Yes, what is the highest degree of this polynomial? 4. 4, इसीलिए इसका आंसर आया 4। अब इस पॉलिनोमियल को ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज, और यू कैन से हाउ मेनी एजेस आर देयर इन दिस ग्राफ जी, देन व्हाट इज योर आंसर? 4. 4 सर। 4 edges.
इट इज अगेन 4. कहां से पता चला? सेकेंड टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म. आप ये नहीं बोलोगे सेकेंड टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर डिग्री 4 होगा तो इसके जस्ट छोटी वाली डिग्री, मीन्स यू जस्ट रिड्यूस 1 फ्रॉम दिस हाईएस्ट डिग्री. ओके, तो इसमें से 1 रिड्यूस करके क्या आएगा? 4 माइनस 1 गिव्स मी 3. सो t टू द पावर 3 देखोगे और उसका जो भी कोएफिशिएंट होगा दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ G. क्लियर? ओके सर. Okay. And what is the value of constant term in this polynomial? 0. 0. Okay, ये 0 है इसीलिए हम इसे क्रोमैटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं. अगर वो नॉन जीरो रहता कांस्टेंट टर्म, then it is not the chromatic polynomial. Clear to everyone? Yes, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now my next question is, can I say this polynomial is monic? Yes, sir. Yes sir. What is the criteria to check whether the given polynomial is monic or not? Leading coefficient is 1. Leading coefficient is 1. So always remember chromatic polynomial अगर आपको मिलेगा तो उसका leading coefficient always 1 होगा, constant term always 0 होगी. Clear? Okay. Yes sir. Yes, sir. So this is all about this question number 2. Now let's move on the next question. Question number 3. What is the chromatic polynomial for the complete bipartite graph K15? Yes, Akanksha Churi, tell me, or you can say just explain this question. सर इसका आंसर k इंटू के माइनस 1/5 होगा, क्योंकि हम बाइपार्टाइट ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1,5, तो उसका वही आएगा. ऐसे आंसर करोगे किसी भी क्वेश्चन का? सर अगर हम बाइपार्टाइट ग्राफ ड्रॉ करेंगे के 1,5 और उसका उसका कलरेशन हम देखेंगे तो के और वो 5 का k-1 ही कलर होगा ना, मतलब. सर इसका ऐसा भी तो हो सकता है k raised to 5 into k minus 1. Sorry, Ritik. सर k raised to 5 into k minus 1, क्योंकि सर वो अपने पर डिपेंड करता है ना कौन से साइड को कंसीडर कर रहे हैं. ले लो. पहले तो ये बताओ ये कौन सा ग्राफ है? Complete bipartite. So can I say complete bipartite graph is a bipartite graph? Yes sir. और bipartite ग्राफ के बारे में हमें क्या पता है? Can I say tree is also a bipartite graph? Yes sir. Yes, sir. और ट्री अगर 6 वर्टाइसेस पर होगी तो उसका क्रोमैटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा? k into k minus 1 raised to 5. K into k minus 1 to the power 5. Clear? So this is one kind of argument you can use over here. Okay, अब ऋतिक के क्वेश्चन का आंसर करते हैं. Yes, Ritik. Observe, can I say this is the proper diagram of K15?
यस सर। ओके, अब चेक कर लो। सर अगर सेकंड सेट को एलिमेंट को अगर हम लोग के से करते हैं और फर्स्ट सेट को के माइनस वन से तो फिर वेरीफाई हो जाएगा ना। ओके, आप इसे किससे कर रहे हो? के से। के करो। फिर आप इसे भी के से कलर करोगे, राइट? यस सर। और आप बोल रहे हो कि इसे अब हम के माइनस वन से कलर करेंगे, और आपके हिसाब से इसका आंसर समझा आना सर, चाहिए। समझा सर। क्या समझा? मैक्सिमम कलर यूज करो। यस, सॉरी, रिपीट इट। सर ये मेथड से मैक्सिमम कलर ऑफ एलिमेंट यूज हो जाएगा और हमें तो मिनिमम ही यूज करने का है ना। एग्जैक्टली। Okay, always remember we are having by default condition, that is we need to use the minimum number of colors. Okay, तो ऐसे मत करना, this is wrong. Okay, और वो आपको ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा. Hence option 4 is the correct one. Okay, here you can use the argument for trees, because ट्री के बारे में हमें पता है, और यू कैन सी ये भी एक तरीके से ट्री फॉर्म हो रहा है ऑन 6 vertices. Is the question 3 clear? यस सर। Yes. Okay. Now let's move on the next one. Which of the following can be a chromatic polynomial? Okay. Yes, Tanvi, unmute yourself and explain. सर सी तो नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट ये है, और डी तो मीन्स अल्टरनेटिव साइंस है, तो इट कैन बी डिस्कार्डेड, एंड ए भी नहीं होगा, इट इज नॉट अ क्रोमैटिक पॉलिनोमियल, एंड बी सर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए क्या, मीन्स क्रोमैटिक पॉलिनोमियल का? वेट पहले हम किसे डिस्कार्ड कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी को डिस्कार्ड कर रहे हैं. ओके, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ क्रोमैटिक पॉलिनोमियल. तो सी तो नहीं होगा. व्हाट इज द रीजन? कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म है. ओके, सो सी तो नहीं होगा. सो सी डिस्कार्ड हो गया. ओके, अब आपने क्या बोला डी के बारे में, राइट? हाँ यस सर। तो डी क्यों नहीं होगा? एज नहीं दिखा रहा. होने यस. चाहिए। क्रोमैटिक पॉलिनोमियल के जो भी साइंस है वो अल्टरनेट होने चाहिए. यहाँ पे सारे प्लस के आ रहे हैं, इसके वजह से ये भी डिस्कार्ड हो गया. बचे हमारे दो ऑप्शन. इसमें देखो अल्टरनेट साइन तो है. ओके, अब आप इन दोनों में से किसी एक को डिस्कार्ड करोगे, और किसे डिस्कार्ड करोगे एंड क्यों? यस तन्वी, नाउ टेल अस. सर ए को डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि माइनस के आना चाहिए, और माइनस के आना चाहिए, क्यों? हमें that was an example in that since you have only given that, so answer was there. ओके, ठीक है. आप इस ऑप्शन नंबर ए में से के को कॉमन ले लो. क्या बचेगा? के क्यूब माइनस 3k स्क्वायर
प्लस 3k. ओके, इसमें से आप फिर से k को कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 3. नहीं तो आप इसी के बारे में सोचो कि इसे हम किस तरीके से लिखेंगे. ओके, इससे वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? ओके, अगर मुझे इसे इस तरीके से लिखना है, फॉर एग्जाम्पल k माइनस 1 टू द पावर 3, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? यस, प्लस सर 1 लेकिन -1 उसका रूट नहीं है ना. सॉरी ऋतिक. -1 +1 एडजस्ट अरे करेंगे. इक्वेशन का रूट नहीं है. एग्जैक्टली. ओके, सो इसमें हम करेंगे -1 और +1 एडजस्ट कर देंगे, सो -1 +1. तो ये -1 तक तो ये मुझे देगा इतना, बाद में बच क्या जाएगा? +1. राइट, ये क्लियर है यस यहाँ सर. तक? बाहर है हमारा k. सो ये क्या बन जाएगा? k इंटू k माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस k. इज दैट क्लियर? यस, यहां तक क्लियर है? यस सर. ओके, अब आपको सोचना है ये किसका क्रोमेटिक पॉलिनोमियल आता है, और आता है या नहीं आता. ठीक है, तो इसके बारे में सोचना कि ये किसका आएगा, और आएगा भी या नहीं आएगा. ओके, तब तक हम बी के बारे में बात करते हैं. यस तन्वी, बी होगा क्रोमेटिक पॉलिनोमियल? Sir, don't know. See, you can make a simple observation over here. Which is that observation? What we have for a chromatic polynomial, leading coefficient is what? 1, 1. और इसका leading coefficient क्या है? 3 है. So होगा ये chromatic polynomial? No, sir. तो ये नहीं होगा. ओके, सो हमने तो 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए. अभी इस फोर्थ वाले के बारे में आपको सोचना है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता. अगर नहीं हुआ तो फिर ये क्वेश्चन मीनिंगलेस हो जाएगा, और ये क्वेश्चन में हमें दूसरा ऑप्शन डालना पड़ेगा. तो आपको जस्ट ये देखना है कि ये किसका क्रोमेटिक पॉलिनोमियल आता है, और आता है या नहीं आता. ओके, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, सी इसके बारे में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ये किसका क्रोमेटिक पॉलिनोमियल बनेगा? 3 का ना. ट्री ऑन हाउ मेनी वर्टाइसेस?
4 vertex. 4 वर्टाइसेस. ओके, और उसमें आपको एक वर्टेक्स ऐड करके चेक करना है कि वो किस तरीके से ऐड करोगे कि जिससे कि आपको ये क्रोमैटिक पॉलिनोमियल मिल जाए. Okay, so this is the hint. Just try to think on it. Is the question number 4 clear? Yes, is it clear? Yes, sir. Okay. Now let's move on the fifth one. If g of p comma q is a tree, then chromatic polynomial is. क्या आएगा इसका आंसर? B. Is it B? इसका आपने बोला था ना प्रूव करने के लिए. यस, प्रूव करने के लिए बोला था. ओके, तो उसमें देख लेना आपको क्या प्रूव करना था. ओके, और ये आई थिंक इन्होंने नीचे लिखा है, ये नीचे नहीं, ये यहाँ पे आना चाहिए पावर में. यस, वो रिजल्ट एक बार चेक करो, पावर p है या पावर p-1 है. आई थिंक p-1 है. Yes, sir. ओके, Yes, sir, P-1. तो ये जो सेकंड ऑप्शन है इसे करेक्ट करो, ये -1 पावर में आएगा. ओके, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. क्लियर टू एवरीवन? Yes, is it clear to everyone? Yes, sir. So remember, Yes, टिक मार्क से धोखा मत खा लेना कि इसमें जो टिक किया है वो करेक्ट ही होगा. ओके, ये जब मैं टीवाई में था तो ये तब का मैंने टिक मार्क करके रखा है, तभी मैं भी आपके जैसा एक स्टूडेंट था. जो आंसर मिले उसे टिक कर दो, या फिर किसी दूसरे ने बोला तो बिना सोचे समझे टिक किया गया हुआ ऑप्शन है ये. ओके, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप कोई एमसीक्यू पढ़ रहे हो तो आपको खाली उस एमसीक्यू को पढ़ना और उसके करेक्ट ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना है. जितने भी ऑप्शंस आपके पास मिले हैं, आप उन चारों के बारे में सोचोगे और सोचोगे कि आप उसे डिस्कार्ड कैसे कर सकते हो. अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो उससे हमें वन शॉट में आंसर मिल जाएगा. लेकिन अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है तो हमें उसके चारों ऑप्शन डिस्कस करने पड़ेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास ट्री के बारे में रिजल्ट है जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, सो यू कैन यूज दैट रिजल्ट डायरेक्टली. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने प्रूव किया है, राइट? क्रोमेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ए साइकिल ऑन n vertices using k colors is. प्रूव किया है या नहीं किया? किया है सर. 1 है इसका आंसर. A. ऑप्शन नंबर ए. ओके, ये भी हमने प्रूव किया है. सो जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा तो हम बाकी के ऑप्शन पे जाएंगे ही नहीं, डायरेक्टली हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो. अगर नहीं है तो हमें चारों ऑप्शन डिस्कस करने पड़ेंगे. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं बिकॉज नाउ आई एम हैविंग द प्रैक्टिकल. सो आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और यू कैन से फॉर नेक्स्ट सैटरडे 7th से लेकर आपको 15 तक सारे एमसीक्यूज ट्राई करना है विथ एक्सप्लेनेशन. क्लियर?
और अब ये भी सोचना कि क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सो आपको उसे प्रॉपरली करेक्ट करते आना चाहिए. Okay, now anybody want to ask any kind of doubt? प्रैक्टिकल वन सर कब तक सबमिट करना है? यस, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तब तक आप लिख के रखो. और जो भी क्वेश्चंस हमने नहीं किए आप वो सॉल्व करो. अगर सॉल्व होता है या नहीं होता वो चेक करना, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कब तक सबमिट करना है. ओके और या फिर आपको Okay. क्लासरूम पे पता चल जाएगा. सर एंड Okay, एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन देना है? नहीं, वो खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको खाली आंसर टिक मार्क करना है. ओके सर. ओके क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है. वेट अ मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग. ओके 90% चांसेस है. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर. ओके एक्चुअली स्क्रीन हैंग हो चुका है, मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है. सो 90% आपके चांसेस है कि आपके एग्जाम ऑनलाइन ही होगी, बट नॉट श्योर. ओके तो हमें दोनों के लिए प्रिपेयर होना है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. ओके नाउ यू कैन एग्जिट फ्रॉम द मीटिंग.